हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैनेजर्स कमीशन, ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आज हम पढ़ेंगे कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन पर उसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और तब उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। और साथ साथ ये भी सीखेंगे हम कि किस तरीके से क्वेश्चन को, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनको प्रेजेंट किया जाता है, मीन प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। तो हम क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए, वो डीके गोयल क्लास 12th उसका फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 1.110। ये अलग बात है कि अलग अलग एडिशन की बुक्स आपके पास होंगी। अगर डीके गोयल की बुक है आपके पास, किसी और एडिशन की होंगी, तो क्वेश्चन तो वही होगा। हो सकता है नंबर सीरीज बदल जाए, पेज नंबर बदल जाए, तो आप चेक कर लेना उसको, या कोई और भी किताब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, बस यहां आप सीखेंगे कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। साथ साथ आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, उतनी ही ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ करके और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स and on 1st April 2015 their capital accounts were 5 lakh, rupees 3 lakhs and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed includes the following information. A, C is entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. B, partners are to be allowed interest on capital at the rate of 6% per annum and are to be charge interest on drawings at the rate of 12% per annum. C is entitled to an extra benefit of 5% of profit in excess of rupees 50,000 after providing for para A, B and C. D, B is entitled to 1/4 of the profits after providing for all the amount in para A, B, C and D, and the balance profit will be shared by A and C in the ratio of 7:3. Now try to understand this question up to D. As in the partnership deed it is mentioned, C will get salary, it's okay. Partners are to be allowed interest on capital, it's okay. Interest on drawings 12% per annum, okay. Now C is entitled to an extra benefit, 5% of profit, mean whatever the profit after deducting salary, after deducting interest, after taking interest on drawings, वो जो प्रॉफिट बचेगी उस प्रॉफिट पे 50,000 से ऊपर की जितनी प्रॉफिट होगी, यानी कि 50,000 हटा दें, जो ऊपर की प्रॉफिट होगी उस पर 5% उसको कमीशन मिलेगा और वो उसका कमीशन घटाने के बाद 5%, यानी कि सी का भी कमीशन उस प्रॉफिट में से घट चुका हो। पार्ट डी कहता है बी इज एंटाइटल्ड टू 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। बी को पूरे प्रॉफिट, यानी कि सी के कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट अब बचेगी, बी को 1/4 मिलेगा। 1/4 किसका? बी की प्रॉफिट को घटाने के बाद। इसको हम देखेंगे वर्किंग नोट में कैसे हम करेंगे। ए हैज विथड्रॉन 6,800 ऑन 31st May 2015 एंड 10,000 ऑन 1st November 2015. B has withdrawn 2,000 at the end of each month, whereas C has withdrawn rupees 15,000 during the year. The net profit for the year ended 31st March 2016 before making above adjustment was rupees 2,50,000. This is the question. Now we will solve it. See it. As the net profit is given rupees 2,50,000, we will write in the credit side of profit loss appropriation account
for the year ended on 31st March, that is 2015, by net profit as per profit and loss account 2,50,000. First, two, interest on capital. A's capital was rupees 5 lakh. On 5 lakh rupees, the interest rate is 6% per annum. 6% per annum. On rupees 5 lakhs, at the rate of 6%, $30,000. B, 3 lakhs, at the rate of 6%, 18,000. C, rupees 1,50,000, at the rate of 6% per annum, 9,000. Total 57,000. Second, interest on drawings at the rate of 12% per annum. Here we will show in the working note calculation of interest on drawings. A has withdrawn rupees 6,800 on 31st May and rupees 10,000 on 1st November on the different time interval. So we will use here the product method. Date 31st May 2015 and 1st November 2015. Amount drawn 6,800 and 10,000. Period up to 31st March 2000. This is 2015. From 31st May to 31st March, 10 months. And 1st November to 31st March, November, December, January, February and March, 5 months. Product 68,000 and 50,000. $1,18,000. This is the product. Now the total product, interest on drawings. Remember the formula. 1,18,000 into 12% into 1 by 12. This cut 1,180 by interest on drawings. A 1,180. Now B's. B has withdrawn rupees 2,000 per month at the end of every month. So we will calculate first average period as is drawn at the end of every month. So from first drawing to closing date there was 11 months.
Last drawing to closing date 0 month divided by 2, average period is 5.5 months. Total 2000 rupees into 12 equal to 24,000 he has withdrawn. Now interest on drawings. On 24,000 at the rate of 12% per annum for 5.5 by 12 month. $1,320. So B's interest drawing is 1,320. C has withdrawn rupees 15,000 during the year. Mean the whole year has withdrawn total amount rupees 15,000. When it was drawn, it is not given. C's interest on drawings on rupees 15,000 at the rate of 12% per annum for 6 months. Rupees 900. This is interest on drawings. Now C is entitled to an extra benefit of 5% per annum, 5% profit in excess of 50,000. Before it, C is also getting salary. To C's salary rupees 12,000. To C's extra benefit that is 5% on the profit in excess of rupees 50,000. So here we will calculate C's extra benefit. Calculation of C's extra benefit, that is 5% of profit, that is 2,50,000 plus 3,400 minus 57,000 minus 12,000 minus 50,000 minus C's benefit. This is means 2,50,000 में से 2,50,000 प्लस 3,400 जोड़ लें, ये एक्सपेंसेस घटा दें सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50,000, तो उसको भी घटा दें, उससे एक्स्ट्रा निकल जाएंगे और सीज की बेनिफिट भी घटानी पड़ेगी, ये 5% की। तो ये आएगा कितना आपका 2,50,000, 2,53,400, ये प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस 57,000 माइनस 12,000, ये हो गए आपके 2,53,400 में से 69,000 घट जाएंगे, तो ये आएगा, बचेगा आपका 404 1,74,400 1,84,400 तेरह मत 5 8 1,84,400 माइनस 50,000 1,34,400, तो कमीशन हो जाएगा सीज एक्स्ट्रा बेनिफिट
सीज एक्स्ट्रा बेनिफिट 1,34,400 इंटू 5/105, क्योंकि उसका कमीशन घटा नहीं था, उसे कमीशन घटने के पहले का ये प्रॉफिट है, कमीशन घटाने की बाद की प्रॉफिट का 5% होना चाहिए था। तो ये 5/105 कर लेंगे, जो हमने बताया था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये 105 रुपए। ये हो गया 521 जा 105 6 8 4 4 4 6,400 6,400। ये हो। आगे लिखा है डी, बी इज एंटाइटल्ड टू 1/4 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द अमाउंट इन पैरा ए बी सी एंड डी, यानी कि ए भी घट चुका उस प्रॉफिट में से, बी में जो दिया हुआ है पार्ट बी में, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन राइट्स, वो भी एडजस्ट हो चुका हो, सी की एक्स्ट्रा बेनिफिट भी एडजस्ट हो चुकी हो, और डी की प्रॉफिट भी एडजस्ट होने की बाद की प्रॉफिट पर 1/4। तो यहां पर पहले हम बी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। B will get 1/4 of the profit after para A, B, C and D. So the profit is profit आफ्टर पैरा ए, बी एंड सी। देखिए 2,50,000 प्लस 3,400 माइनस 57,000 माइनस 12,000 माइनस 6,400, ये कितने बचेंगे? तो ये हो जाएगा आपका टोटल 180, 2,53,400, 57, 12, 59, 69, 6, 75,400, 75,400। ₹1,78,000 रुपीज, 1,78,000। अब इसको कह रहे हैं इसमें बी का प्रॉफिट क्या होगी? बीज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग पैरा डी, वो है 1/4, यानी कि बिफोर दिस 1,78,000 इज द प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग बीज प्रॉफिट। बी की प्रॉफिट घटाने के पहले का है। अगर ये फ्रैक्शन में दिए 1/4 तो वहां पर जैसे हम वहां रेट पे करते थे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यहां पर करेंगे कि अगर 1/4 दिया हुआ है तो उसमें 1/4 प्लस 1 कर लेंगे तो 1/5। तो यहां पर निकालने का तरीका होगा 1,78,000 इंटू 1/5। अगर घटाने के बाद की प्रॉफिट पर 1/4 देना है तो 1/4 प्लस 1 यानी कि 1/5, 1/5 5 कर लेंगे, और ये आ जाएगा आपका 15, 25, 35,600। B's profit is 35,600। यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट होगी 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल।
तो 20 कैपिटल तो मालूम चल गया कि कितना प्रॉफिट होनी चाहिए, 35,600। रिमेनिंग प्रॉफिट ये आपस में 7:3 में बांट लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट will be divided between A and C in 7:3। अब प्रॉफिट बची कितनी ये निकालनी पड़ेगी। रिमेनिंग प्रॉफिट माइनस रुपीज 1,42,400। अब ये बटेगा इनके में 7/10 में और ये 3/10, 1,42,400 is profit। 1,42,400 into 7/10, B is profit। 1,42,400 into 3/10, $99,680, 42,720। $99,680, 42,720, $2,53,400, 2,53,400। This is the way of preparing the profit loss appropriation account. Now we prepare the partners capital account. Now see how to prepare partners capital account. As the capital account balance is given, balance दिया हुआ पहले से, by balance brought down A rupees 5 lakhs, B rupees 3 lakhs, and C rupees 1,50,000। By interest on capital, $30,000, 18,000 and 9,000। By सैलरी, सैलरी किसको, सी को 12,000। By extra benefit to C, $6,400। By profit 99,680, 35,600 and 42,720। Two drawings,
total drawings of A 16,800, B 24,000 and C 15,000. To interest on drawings. $1,180, 1,320 and 900. Now find the two balance. Zero to 11, 20, 12, 1, 1, 2, 2,20,120 टोटल। 6 + 13, 3, 1, 4, 1, 5, 0, 8, 6, 6,29,680, 3,53,600, 2,20,120, to balance carried down or carried forward 0, 0, 16, 1, 6, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 1, 2, 6,11,000, 6,11,700, 0, 8, 2, 10, 1, 3, 4, 2, 6, 4, 1, 5, 8, 13, 1, 2, 3, 2, 5, 3,28,280, 0, 2, 9, 2, 11, 1, 5, 6, 4, 10, 1, 1, 2, 2,04,220. This is the final balance at the end of the year of the partners capital account A, B and C. This was the simple comprehensive question. Not all items were taken, but how to calculate the commissions, how to calculate the extra benefit, how to calculate the profit, that we have learned. इसके अलावा और भी बहुत से प्रश्न हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आप सीखेंगे नई नई चीजें। लेकिन यहां एक बात मैं और कहना चाहता हूं, प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इन योर आंसर कप ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो आप मेजर कर लें कि कितनी लेंथ में वो बनेगा। ये प्रैक्टिस से आप सीख जाए, उसको बना लें, लाइन ड्रॉ कर लें, उसके फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। पार्टनर्स कैपिटल बनाने हैं या पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने हैं, उसका भी एक लेंथ आप मेजर कर लें, एक आइडिया लग जाएगा, और उसकी भी लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद आप क्वेश्चंस के वर्किंग नोट्स को जरूर शो करें। वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू हैव टू शो योर ऑल कैलकुलेशंस क्लियरली। वर्किंग नोट शुड बी शोन। तो वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट जब बनाएंगे उस बेस पर जो जो आइटम आपने कैलकुलेट किए वो सारा वर्किंग नोट में शो करेंगे, और ये आपको अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाएगा और एग्जामिनेशन में आप वो मार्क्स काउंट करेंगे, इस पर अच्छे मार्क्स आप पा सकते हैं। आज हमने ये सीखा, आप और भी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के साथ।